All right. Good evening, everyone. I hope you all can hear me now. Please give me a quick yes in the chat if you all can hear me. All right. I hope there's no disturbance. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, I can see your reactions as well. Uh, Great. Okay. All right. So this is the second session out of the three sessions that we have planned. Or again, I'll repeat the same thing that told you before in the first session also. Number one, keep your mobile away, unless, of course, you are watching this in your mobile. Second is get a notebook and a pen. Please make notes of anything that is important. We're going to discuss 5 topics today and stick with me till the end. You have to learn all the 5 topics that we're going to discuss and then you'll leave. I'll take about 70 minutes or 75 minutes to finish this, so a little more than 1 hour. तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की शायद क्लास होगी है. तो नोट्स बनाते रहिएगा एक, और दूसरी चीज अपने मोबाइल को या जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन सबको आप अब आइंदा 1 घंटे के लिए प्लीज इन सबको दूर रखें. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ द 5 कॉन्सेप्ट्स. 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं. सबसे पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, और सबसे इजी कॉन्सेप्ट जो लगता है कि सबसे इजी है, और आप में से कई लोगों को इसका जवाब आता भी होगा. खैर, मैं आपसे पूछने नहीं वाला हूँ इस सेशन में कोई भी कॉन्सेप्ट, लेकिन देखते हैं कि कितने लोगों को उतने डेप्थ में आता है जितने डेप्थ में ये एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैपेसिटी ऑफ माइनर टू कॉन्ट्रैक्ट. Capacity of minor to contract, meaning can a minor enter into a contract? The answer is very simple. आप सबको इसका आंसर पता ही होगा. What is the answer? Can a minor enter into a contract? Yes or no? You can use your chat to type in your replies. Send to me, you can choose Jurish or account, and then you can send it and I'll get it. No issues. All right. So everybody knows that a minor cannot enter into a contract. That's the basic answer. ये सबको पता है, ठीक है. अगर आपने लॉ स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया, अगर आप क्लैट भी दे रहे हैं, तो आपको ये पढ़ाया जाता है क्लैट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि a minor is not capable of contract. Okay, how? क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 of Contracts Act says that one of the first things you need is capacity to contract. And what is the capacity to contract? Who can contract? Section 11 has defined it. So in section 11, you have the definition as to who exactly is capable of entering into a contract, right? And according to that, it says a person should be of age of majority. एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना हो तो. और इंडियन मेजोरिटी की एक्ट के हिसाब से एज ऑफ मेजोरिटी इंडिया में है 18. तो अगर 18 साल का कोई इंसान हो तब वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये बेसिक आंसर. देयर इज अ लिटिल मोर टू दिस. Okay, pardon me if my camera is misbehaving here, but there's a little more to this and we'll look at it. Okay, now Abhinav, everybody else can hear me. Maybe if you can't hear, you'll have to check on your end. Check your volume, check your speakers. Okay, look at the screen now. What does it say? It says section 11 of the contract, like I told you, says person competent to contract is so and so forth. There are 3 things that section 11 mentions. One is person of age of majority. That is, a person should be of 18 years of age. Second is person of sound mind, meaning he should not be of unsound mind. Iska definition section 12 में दिया गया है, but for now we are not bothered about that. We are bothered about age of majority or can a minor enter into a contract. And third is person not otherwise disqualified by law. अगर कोई law है जिसमें किसी इंसान को ये कहा जाता है कि this person cannot enter into a contract, then in that case that person will not be eligible to enter into a contract. ठीक है. एक सबसे अहम केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष. ये केस भी आप सबको पता होगा. एंड दैट केस सेज दैट एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड. एक माइनर एक अग्रीमेंट कर ही नहीं सकता. देखिए, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का फर्क तो आप सबको पता होगा. अ वैलिड अग्रीमेंट which is enforceable by law
अगर आप एक अग्रीमेंट है जो लॉ से आप एनफोर्स कर सकते हैं, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट. सो इफ देर इज एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर आप कोर्ट में जाके उस अग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. तो माइनर, अगर एक अग्रीमेंट का पार्टी हो, तो वो अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. मतलब दैट अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ. ऑलराइट. Hence, it will never be a contract. This is a basic, simple answer. But there is a little more to it. इससे भी कुछ और चीज हैं जो आप इस कॉन्सेप्ट में आपको पता होनी चाहिए. What is it? Let's move on. सेक्शन 64 और 65 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. सेक्शन 64 और 65 क्या कहते हैं? ये सेक्शंस ये कहते हैं कि अगर कोई वॉइड अग्रीमेंट में आप एंटर करते हैं, या 65 कहते हैं अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाता है. दो चीजें. आप कोई वॉइड अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, आपने एक एग्रीमेंट साइन किया और वो वॉइड है. और दूसरी चीज, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, मतलब जब आप साइन कर रहे थे तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में वो वॉइड बन गया. मे बी लॉ चेंज हो गया होगा, इट माइट हैव बिकम इलीगल टू एंटर इनटू सच अ कॉन्ट्रैक्ट. तब क्या होगा? द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय वन पार्टी विल हैव टू बी रेस्टोर्ड टू अनदर पार्टी. ठीक है. जो भी बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय वन पार्टी शुड बी रेस्टोर्ड बाय अनदर पार्टी. मान लीजिए कि हम दोनों एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट में हैं. ओके सचिन, my voice is breaking. I think it could be network on your end. Everybody else, I guess, can understand. और मान लीजिए कि आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. ठीक है. और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि यू विल सप्लाई 10 kilograms ऑफ गोल्ड टू मी. आप 10 किलो गोल्ड, सोना मुझे सप्लाई करेंगे और मैं वो खरीदूंगा. शायद मेरी सोने की दुकान हो, तो मुझे होलसेल में खरीदना पड़ रहा हो ताकि मैं बेचूं और वो शायद मेरा बिजनेस हो. ठीक है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. फाइन. प्राइस भी मेंशन हो गया, कंसिडरेशन है, सब कुछ है इसमें. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड. कल को अगर कोई लॉ पास होता है विच सेज दैट बाइंग मोर देन 5 kilograms ऑफ गोल्ड विल नॉट बी लीगल. आप एक कॉन्ट्रैक्ट में 5 किलोग्राम ऑफ गोल्ड से ज्यादा आप खरीद नहीं सकते. टू प्रिवेंट होल्डिंग, मे बी शायद गोल्ड की सप्लाई बहुत कम है, तो सरकार ने ये कानून निकाला है. तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये क्या होगा? ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय द लॉ. सेक्शन 23 के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इट इज फॉरबिडन बाय द लॉ. सो ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तब होगा क्या कि इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए मैंने आपको कुछ एडवांस पैसे दे रखे थे, वो पैसे तो मैं वापस मांगूंगा आपसे. वो कैसे मांगूंगा? सेक्शन 64 65 के चलते आई विल डिमांड दैट यू पे द बेनिफिट्स दैट यू हैव रिसीव्ड बैक टू मी. तो आपको जो ऑलरेडी बेनिफिट्स मिल चुके हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो आप मुझे वापस कर दें. अगर आपने कुछ सोना सप्लाई कर दिया मुझे, तो मुझे वो वापस करना होगा आपको. सो सेक्शन 64 एंड 65 सिंपली से that there will be restoration of benefits under a void agreement or a void contract. Okay. Now the question is, मान लीजिए एक minor enters into a contract, an agreement. One minor has entered into an agreement. Later, the other party gets to know that this person is a minor. एक कोई इंसान है, वो माइनर के साथ एग्रीमेंट एंटर करता है. बाद में उसको पता चलता है कि ये जो इंसान है, ये जो आगे वाला इंसान है, वो सिर्फ माइनर है, वो मेजर नहीं है. और उसने कुछ चीजें उसको सप्लाई कर किया है तब तक ही. तो द क्वेश्चन इज, कैन द अदर पार्टी डिमांड रेस्टोरेशन ऑफ दोस थिंग्स फ्रॉम द माइनर? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप मान लीजिए, सचिन कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड. मैं हर टॉपिक के बाद आपको मैं टाइम दूंगा क्वेश्चंस के लिए. आप बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं, वो चैट में वैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा. ठीक है. तो आप पहले इनको सुन लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लेना. लास्ट में जब आपके पास डाउट्स हो तो मैं हर कॉन्सेप्ट के बाद आपको 2 मिनट दूंगा कि आप डाउट्स पूछें. ओके. अच्छा, मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है.
सेकेंड हैंड कार मैं बेचना चाह रहा हूँ, ये कार मुझे पसंद नहीं, मुझे नई कार खरीदनी है, मेरे पास जो कार है मुझे बेचनी है। सामने से कोई इंसान आता है खरीदने के लिए, ठीक है, उसके साथ मैंने अग्रीमेंट कर ली कि मैं, लेट्स से आई विल सेल द कार फॉर 1 लाख रुपीज टू यू, 1 लाख रुपए में मैं आपको कार बेच दूंगा। तो इसमें कंसिडरेशन क्या हो गया, मेरे तरफ से कार जा रही है उसके पास, उसके तरफ से 1 लाख रुपए मुझे आ रहे हैं। अब ये एग्रीमेंट है। अब वो कार लेके चला गया, वो कहता है कि देखिए मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप कार लेके जाइए। ओके। कल मुझे पता चलता है कि वो जो इंसान जिससे मैंने एग्रीमेंट किया है, जो मेरी कार लेकर गया, वो सिर्फ 17 साल का है, वो माइनर है। अब द क्वेश्चन नाउ इज, कैन आई डिमांड दैट द कार बी रिटर्न टू मी? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि देखो आपने जो कार आप जो कार ले गए, वो कार आप मुझे लौटा दीजिए, मुझे वापस कर दीजिए। कैन आई डिमांड दैट कार, यू नो, फ्रॉम दिस पर्सन? और अगर मैं डिमांड करूं, तो क्या ये कह सकता है, ये जो इंसान है, क्या ये मुझे ये कह सकता है, देखिए वो अग्रीमेंट तो वॉइड था। तो अगर वो अग्रीमेंट वॉइड था, क्योंकि आई एम अ माइनर, मैं माइनर हूं, अग्रीमेंट तो वॉइड है, तो मुझे कोई भी चीज लौटाने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो ये सिनारियो है। मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष जो हमने केस देखा था, उसमें एक मॉर्टगेज के फैक्ट्स थे, मैं फैक्ट्स में नहीं जा रहा, बेसिकली मॉर्टगेज था, एक माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया था, और उसने अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग ली विदाउट पेइंग मॉर्टगेज मनी, और कोर्ट ने कहा आप पैसे ना दें, क्योंकि आपसे एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता, आप माइनर है तो पैसे ना दें। अब इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए लेट्स लुक एट व्हाट इज ऑन द स्क्रीन। सेक्शन 64 और 65 के अंदर मैंने जो कहा था कि बेनिफिट्स शुड बी रेस्टोर्ड, कैन आई इन्वोक दैट सेक्शन टू गेट माई कार बैक? The answer is no. I cannot demand that car back under section 64 and 65. क्यों? क्योंकि 64 और 65 में ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो और वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाए। यहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, पहले से ही ये वॉइड है अग्रीमेंट, तो सेक्शन 64 65 में नहीं हो सकता। ओके। तो फिर कहाँ हो सकता है? यहां आपको लिखना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक सेक्शन, सेक्शन 33। अब देखिए सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो आप यहां पर नोट कर लीजिए कि अगर कैपेसिटी ऑफ माइनर टू कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई क्वेश्चन आए, तो आपको सेक्शंस 10 और 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख के खत्म नहीं करना है। वो तो पहली चीज है, वो तो आप लिखेंगे ही, वहीं से आंसर शुरू होगा। आपको दूसरी चीज जो लिखनी है वो ये है, सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये आपको लिखना ही लिखना। क्यों? अब देखिए क्या कहता है यहाँ सेक्शन 33। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट क्लॉज, on adjudging the cancellation of an instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to restore, so far as may be, any benefit which may have received, which he may have received from the other party, and to make any compensation to him which justice may require. तो अगर कोई अग्रीमेंट वॉइड है या वॉइडेबल है, और वो वॉइडेबल को वॉइड किया गया है, तो जो भी बेनिफिट्स उसने पाए हैं, उन सारे बेनिफिट्स को वापस करने होंगे, दे विल हैव टू बी रेस्टोर्ड। ओके। आगे देखिए, वेयर अ डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेजिस्ट्स एनी सूट ऑन द ग्राउंड दैट, गो टू सेकंड क्लॉज, क्लॉज बी। क्लॉज 2 में सब क्लॉज बी पे आप देखिए, that an agreement sought to be enforced against him in the suit is void by reason of his not having been competent to contract under section 11 of the Indian Contract। अगर यहां पर डिफेंडेंट कहता है मैंने कार मांगी है, जो कार लेकर गया 17 साल का लड़का, वो मुझसे कहता है कि देखिए ये अग्रीमेंट वॉइड है। क्यों? बाय रीजन ऑफ मी नॉट हैविंग बीन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 के तहत मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए ये वॉइड है।
So what can the court do? The court may, if the defendant has received any benefit under the agreement from the other party, require him to restore so far as may be such benefit to that party. तो अगर इस केस में the court can order that the defendant, the 17-year-old boy here, the court can order this boy to simply restore the benefit that he has received, which means that he will have to restore the car that he has received. Okay, so restoration of benefits can be invoked under section 33 of Specific Relief Act. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप नहीं कर पा रहे हैं वो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में देखिए डायरेक्ट सेक्शन 11 वहां पर मेंशन्ड है। ओके, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखिए एक रूल है, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस। कुछ जुडिशरी एग्जाम्स में ये सवाल ऐसे पूछा जाता है, यूपीएससी के लॉ ऑप्शनल में भी कई बार पूछा गया। ये स्टेटमेंट दिया जाता है, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस, एंड फिर बाद में कहा जाता है एक्सप्लेन और एलैबोरेट या डिस्कस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप माइनर को आप ये कह सकते हैं कि प्लीज रेस्टिट्यूट द बेनिफिट्स दैट यू हैव रिसीव्ड। आपके पास जो बेनिफिट्स हैं वो आप लौटा दें, बट आप ये नहीं कह सकते कि आप रीपे करें। मतलब 3 सिनारियोस वहां पर आपकी स्क्रीन पे हैं, इससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट सिनारियो, व्हेन अ माइनर इज गिवन प्रॉपर्टी ही कैन बी आस्क्ड टू रेस्टोर दैट। आपने अगर एक माइनर को प्रॉपर्टी दी है तो आप वो वापस ले सकते हैं। मैंने कार दी है, कार प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मूवेबल प्रॉपर्टी है, चैटल। क्या ये मैं वापस ले सकता हूँ? बिल्कुल मैं वापस ले सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, when a minor is given property which he sells or converts to his own use, he cannot be asked to pay money for the same. मतलब मैंने कार माइनर को दे दी है, अब वो कार उसने भी बेच दी किसी और को, तो मैं क्या माइनर से ये कह सकता हूं कि देखो जितने पैसे तुमको मिले हैं उस कार को बेच के वो पैसे मुझे दे दो? अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनसे पैसे मांगूंगा तो ये तो वही बात होगी ना, कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया हम दोनों के बीच में। कार दी, पैसे मांग रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई एम प्री सपोजिंग दैट देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ द लॉ। इफ आई एम आस्किंग फॉर मनी, इट मीन्स आई एम आस्किंग फॉर परचेज प्राइस, and I cannot ask for purchase price because it will mean that there is a valid contract. Number 3, when a minor is given money, minor को आप डायरेक्टली पैसे देते हैं, can I demand that that money be repaid to me? The answer is no. Why? Because it will again be repayment. So restitution stops when repayment begins. जब कभी भी repayment हो रहा है तब restitution रुक जाएगा। restitution allowed है, repayment allowed नहीं है। तो रेस्टिट्यूशन कब तक अलाउ होगा? तब तक कि वो रीपेमेंट ना बन जाए, तब तक वो पैसे आप डिमांड ना करें, तब तक रेस्टिट्यूशन अलाउड है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सिनेरियो है। लेकिन फिर भी आपको अगर डिमांड करना है तो आप कहां करेंगे? सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर। अच्छा, एक चीज और है, वो है सेक्शन 68। सेक्शन 68 ये कहता है कि बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई माइनर को नेसेसरीज सूटेड टू द कंडीशन ऑफ हिज लाइफ, उसके जिंदगी के लिए जो जरूरी नेसेसरीज हैं वो अगर आप कोई माइनर को देते हैं तो उसके लिए रियम्बर्समेंट आप उसके एस्टेट से ले सकते हैं। एस्टेट से मतलब उसके प्रॉपर्टी से, उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो या आइंदा उसके पास प्रॉपर्टी आ जाए तो उस प्रॉपर्टी से आप रियम्बर्समेंट कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। नेसेसरीज क्या होते हैं? बहुत सारे केसेस हैं, हम तब करेंगे जब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा। लेकिन नेसेसरीज बेसिकली ये कि सूटेड टू द कंडीशन ऑफ लाइफ, अगर उसके पास कोई खाने के लिए कुछ चीज नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सारे नेसेसरीज हो जाएंगे। आपने उसको खाने के लिए कुछ दे दिए पैसे, ये कहते हुए कि देखना बाद में तुमसे लूंगा। बाद में आप जब उसके पास कोई प्रॉपर्टी आ जाए तो उस प्रॉपर्टी से आप रियम्बर्समेंट मांग सकते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि यार मैं तो माइनर था, आपने मुझे पैसे ही क्यों दिए, क्योंकि ये नेसेसरीज थे। तो सेक्शन 68 में ये अलाउड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड होता है। ओके, और एक चीज आपको लिखनी है,
एंड वो है सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट। ये कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर आप देखना। मान लीजिए मैंने कार मुझे बेचनी थी, ये लड़का आया, इस मैंने इससे पूछा, आर यू अ मेजर? क्या आपकी एज जो है वो मेजोरिटी से ज्यादा है? क्या आप 18 साल से ज्यादा हैं? उसने कहा कि देखिए, कैन यू ऑल हियर मी? अमित सेज नो वॉइस। इज माय वॉइस ऑडिबल? नो? Yes, it's audible. Okay, it's audible to, sorry, it's audible to everybody. या थैंक्स अ लॉट। ओके, या जो भी ऑडिबल नहीं है आपको लग रहा है तो प्लीज प्लीज आप अपने पास से अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए और अपना वो चेक कर लीजिए, ठीक है? जिसको वॉइस ब्रेक भी हो रही है वो भी आपको अपना इंटरनेट चेक करना होगा। योर इंटरनेट इज वीक, इसलिए शायद ब्रेक हो रही है, ठीक है? ऑल राइट, आई होप दिस इज स्लाइटली बेटर। आई स्विच ऑफ माई फैन। Okay, so we were talking about estoppel, doctrine of estoppel under section 115, right? तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि फॉर एग्जांपल दिस पर्सन हैज कम टू मी एंड ही हैज, अमित आई कैन नॉट हेल्प यू, एवरीबडी कैन हियर यू। बोलने से सुनाई भी नहीं देगा ना? ओके, ऑल राइट, सो आई वाज गिविंग यू एन एग्जांपल हियर एंड द एग्जांपल इज दिस, दैट मुझे कार बेचनी थी, ये लड़का आया, मैंने इससे पूछा कि देखिए आपकी एज क्या है, आप 18 साल से ज्यादा हैं? तो उसने कहा हाँ हाँ मैं तो 20 साल का हूँ। लेकिन उसकी एक्चुअल एज 17 साल का था वो, लेकिन उसने कहा मैं तो 20 साल का हूं। अब उसने क्योंकि मुझे फ्रॉड्यूलेंटली एज को मिसरिप्रेजेंट किया, कि उसने झूठ बोला, कैन दिस अग्रीमेंट बिटवीन अस बी वैलिड ना? क्या मैं ये डिफेंस ले सकता हूं कि देखिए उसने खुद बोला कि वो उसकी एज जो है 18 साल से ज्यादा थी, तो मेरी क्या गलती? कैन आई टेक दैट डिफेंस एंड से दैट द अग्रीमेंट इज वैलिड? कैन आई डू दैट? द आंसर इज नो। मोहरी बीवी में भी यही आंसर दिया गया था और हर जगह भी यही आंसर है, बहुत आसान सा आंसर है, द आंसर इज नो। वो भले झूठ बोले सच बोले कोई बात नहीं, उसने मिसरिप्रेजेंट किया हो, फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंट किया मतलब इंटेंशनली उसने झूठ बोला, तब भी कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है वो माइनर पे लागू होती ही नहीं। मतलब अगर माइनर आके बोले कि देखिए वो 17 साल का है लेकिन वो कह रहा है कि मैं 20 साल का हूं, बाद में मैं उसको ये नहीं बोल सकता हूं कि यार तुमने ही 20 साल का बोला था मुझे। ही विल नॉट बी स्टॉप्ड। Okay, even if he fraudulently with bad intention misrepresents his age, he will not be stopped. You might feel, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा unjust है, लेकिन that is what the law is. It is my duty to find out his real age, and I will have to take all means to find out his real age. His misrepresentation will not be applicable. अच्छा, ये कहाँ से? ये देखिए सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट से, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है। हम जब एविडेंस करेंगे तो बहुत डिटेल में हम इसको करेंगे, बट यहां पर आपको इतना ध्यान देना है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है सेक्शन 115 में, वो यहां पर अप्लाई नहीं होगी। लुक एट दैट पॉइंट, इट सेज इट डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर इवन व्हेन ही फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंट्स हिज एज। अगर वो झूठ बोल के भी अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट करता है, इवन देन सेक्शन 115 में जो एस्टॉपल है वो एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? I hope this topic is clear now. Let us just go through all the points on the screen and you will understand it even better. First thing, we have already mentioned that section 11 says that minor is not capable of contract. Okay, section 11 says that minor is not capable of contract. Second, restitution of money cannot be made under Contract Act, be it 64 or 65. So restitution of money cannot be made under the Contract Act. Okay. But if you want restitution, where can you do it? You can do it under section 33 of Specific Relief Act. Okay. अच्छा, इसी पॉइंट में, can a minor ratify a contract after becoming a major?
तो क्या वो 17 साल का लड़का 1 साल वेट करने के बाद वो ये कह सकता है कि देखिए मैंने 1 साल पहले जो अग्रीमेंट किया था वो अग्रीमेंट मैं अभी रेटिफाई करता हूँ? नो, ही कैन नॉट डू दैट। वाई? बिकॉज अग्रीमेंट में कब एंटर किया वो मोमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उसने एंटर किया तब तो वो 17 साल का ही था, तो ये भी वॉइड हो गया। सो अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर बिकमिंग अ मेजर। एस्टॉपल जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115, इट डज नॉट अप्लाई even when the minor fraudulently misrepresents. Even when the minor fraudulently misrepresents, it will not apply. ठीक है? Okay. Atif is saying any case law? Yes, there's a case law called Chhagan Lal Mehta versus State of Gujarat, if I'm not wrong. But there's a case law like that. We'll do that case law in detail when we do Evidence Act. मैं अगर यहाँ पर ये कर दूंगा तो फिर वो Evidence Act का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझाना पड़ता, तो मैंने वो चीज यहाँ पर लिखी नहीं। ये सिर्फ इस टॉपिक पे है कि कैपेसिटी ऑफ माइनर अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या लिखना है। बट यस, देयर इज अ केस, इट्स अ सुप्रीम कोर्ट केस, ये वैलिड है। देन minor's liability cannot be enforced in law of torts if the claim is the same as law of contracts. मतलब आप टॉर्ट्स में अगर माइनर की क्लेम आपको इन्फोर्स करना है तो आप तभी कर सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा क्लेम हो जाए। तो टॉर्ट्स आपके लिए ऑल्टरनेटिव नहीं बना। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे कार ये ले गया तो मेरा नुकसान हो गया, तो ये सिविल रॉन्ग है। तो ये सिविल रॉन्ग के अंदर मतलब सिविल रॉन्ग मतलब टॉर्ट बना। तो आई कैन नॉट गो फाइल अ सूट ऑफ टॉर्ट एंड से दैट आई वांट हिम टू पे फॉर द डैमेजेस फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ दिस सिविल रॉन्ग। नो। Why? Because I am in effect trying to enforce a contract which I cannot enforce. So a claim under tort law will not be sustainable. It will only survive if the claim goes beyond contracts. Okay, then invite. And last, I've already told you, Section 68, beneficiary contracts, that can be enforced against minors' estate. This was the entire topic. All right. Now I'm going to open up for doubts now. I hope you've understood कि कौन से आपको सेक्शंस लिखने हैं और क्या क्या आपको लिखने हैं। 2 केसेस आपको याद करने हैं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, लेस्ली वर्सेस शेल। 2 आप केसेस याद करने हैं। सेक्शंस कौन सा है? 11 तो इंपॉर्टेंट है ही। 64 65 में ये कह देना कि इट वोंट बी, इट यू कैन नॉट फाइल फॉर रेस्टिट्यूशन। 33 में कहना कि इसके अंदर रेस्टिट्यूशन हो सकता है। और 155 में 115 ऑफ एविडेंस एक्ट में ये कह देना कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है वो माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? ओके। नसरीन पूछ रही है कि कैन यू एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल? ओके, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो एविडेंस एक्ट का जो डॉक्ट्रिन है वो मैं कहता हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल कॉन्ट्रैक्ट्स में अलग चीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एविडेंस में अलग चीज है। ठीक है? एविडेंस में ये है सेक्शन 115 में दैट इफ आई हैव रिप्रेजेंटेड समथिंग to you, later I cannot go back on it. ठीक है? If I've represented something to you, later I cannot go back on it. Okay, meaning that I cannot deny something that I have told you. तो मैंने आपको कोई चीज आपको बता दी है और बेसिंग ऑन दैट उसके बेसिस पे आपने कोई काम किया है, बाद में मैं ऐसे झुटला नहीं सकता हूँ कि यार ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं। आई एम स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग बैक। आई एम स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग बैक। मैं वापस इस बात से नहीं जा सकता हूँ। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। तो यहां पर कैसे हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल? हम ये कह रहे हैं कि माइनर तो अपनी एज गलत बता रहा है और अपने आप को मेजर बता रहा है। वो 17 साल का लड़का अपने आप को 20 साल का बता रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि यार तुमने ही 20 साल का अपने आप एज बताइए, तब तो फिर अग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए। हमारी क्या गलती है अगर आप तुम्हारी एज सच में 17 साल की हो तो? हमने तो तुमसे पूछा था और तुमने बताया 20 साल का है। तो लॉ कहता है नहीं, यहां पर एस्टॉपल अप्लाई होगा ही नहीं। भले उसने झूठ बोलकर 20 भी कहा हो, 25 भी कहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 साल उसकी एज थी। अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है? जाहिद कहते हैं कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट गोज बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट गोज बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाहिद, कोई एक्ट माइट गो बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक कोई एक्ट होगा जो वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वो टॉर्ट लॉ में डैमेज भी हो सकता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ समवन टू क्लीन माय लॉन। मेरे घर के सामने लॉन है और मैं किसी के साथ में आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू क्लीन माय लॉन।
कि जो भी घास है वो सब आप साफ कीजिएगा, ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो लॉन क्लीन करते करते मान लीजिए वहां पर एक छोटा सा पौधा था, बहुत एक्सपेंसिव प्लांट, एंड उस प्लांट को भी उसने काट दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस आई कैन क्लेम डैमेजेस, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि आप अच्छे से काम करेंगे, आपने अच्छे से काम नहीं किया, आपने नुकसान कर दिया, तो मैं आपसे डैमेजेस क्लेम करूंगा। टॉर्ट्स के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि आपने मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया, तो ये सिविल रॉन्ग है। तो टॉर्ट्स के अंदर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि देखिए आप मुझे टॉर्ट्स के अंदर भी डैमेज दीजिए, क्योंकि ये सिविल रॉन्ग। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो किस्म के डैमेजेस हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में और एक इसमें। तो जब ऐसे दो किस्म के डैमेजेस हो जाते हैं और ये जो डैमेज है वो कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जाता है, तब आप माइनर के खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्ट्स के अंदर माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं। टॉर्ट्स में एक माइनर भी लाइबल होता है, जैसे क्राइम्स में नहीं होता है ना। क्राइम्स में आईपीसी डोली इनकेपैक्स के पास कॉन्सेप्ट से 7 साल के कम बच्चे को तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है, 12 से 7 के बीच में उसको पार्शियल इम्यूनिटी मिलती है, अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाए तो। 12 से ऊपर तो कोई इम्यूनिटी है नहीं। तो ये वैसे टॉर्ट्स में होता नहीं है। तो टॉर्ट्स में आप क्लेम कर सकते हैं। आई होप यू आप डिस्टिंक्शन समझ गए होंगे, ठीक है। ऑल राइट, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू। ओके, ये अगर समझ में आ गया तो मैं आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू एवरीवन। ओके, यस। सेकेंड इज डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू हॉप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किया, अब आगे हम एविडेंस पे। क्लासेस आपके जो 100 डे कोर्स में होंगे वो वैसे नहीं होंगे, वो तो कोर्स बाय कोर्स सेक्शन वाइज हम क्लासेस करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। ये तो मैं इस सेशन के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट एंड दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। ओके, नाउ what is dying declaration? Section 32 clause 1 of Evidence Act has a dying declaration. Before we read on whatever is on the screen, dying declaration होता क्या है? Those are statements that are uttered, that are spoken or written. Those are statements made by a person who has died, of course, and those statements will be relevant in the court of law when his cause of death comes into question. ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? वो स्टेटमेंट्स ये हैं जो इंसान जिसकी जान जा रही है, जो मरने वाला है, वो कुछ भी बोलता है, या वो लिखता है या बोलता है, किसी और को अगर बोल भी दे तो काफी है, वो बोलता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं। अब उसके मौत के जो कारण है वो नहीं पता हमको, वो कैसे मरा, क्यों मरा, हमको नहीं पता। और कोर्ट अगर उस चीज में छानबीन कर रही है कि ये मरा कैसे, ये इंसान की डेथ कैसे हुई, तो उसमें जो उसने कहा है, वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेलेवेंट एविडेंस होते हैं उसके मौत की छानबीन के लिए, ठीक है। ये है डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, अगर मान लीजिए उसको पता नहीं कि वो मरने वाला है, उसको खुद को नहीं पता कि वो एक्चुअली कुछ देर में मरने वाला है, उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी जान जाने वाली, तब वो कुछ बोलता है, तब भी उसके वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेलेवेंट होंगी। मतलब उसको पता होना जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो अभी मरने वाला है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज ऑन द स्क्रीन। अब आपको समझ में आ जाएगा इस चीज को। अब थोड़ा लीगल लैंग्वेज में इसी चीज को पढ़ते हैं। व्हेन अ स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, ये कॉज होना चाहिए था, शायद मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो। एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, कोर्स नहीं, कॉज, रीजन, वजह, एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, और any of the circumstances of the transaction which resulted in death. Okay, in cases where the cause of death of that person comes into question, such statements are relevant whether the person making them is under expectation of death or not. भले वो जो इंसान है वो डेथ को एक्सपेक्ट कर रहा था या नहीं भी कर रहा हो, वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई मान लीजिए डाउरी डेथ का केस है, ठीक है, सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी में डाउरी डेथ एक सेक्शन है।
उसमें मान लीजिए कि देयर इज अ हस्बैंड, देयर इज अ वाइफ, इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया. द हस्बैंड beats up the wife, let's say so much that she is now at a very crucial stage. हस्बैंड वाइफ को इतना मारता है कि वो वाइफ अब बहुत बहुत ही नाजुक परिस्थिति में है, वो बहुत क्रूशियल स्टेज पे है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. अब वो जब हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया उसको इमरजेंसी वार्ड में, डॉक्टर आके पूछता है कि आपसे आपको क्या हुआ. अब वो कहती है कि मेरे पति ने मुझे मारा है, इसके कोई चीज के बारे में हमारा झगड़ा हुआ था और मेरे पति ने मुझे मारा है, तो ये सब हुआ. अब ये डॉक्टर क्या करेगा, ये डॉक्टर खैर उसको इलाज तो करना ही है, बाद में वो खुद लिख भी लेगा ये स्टेटमेंट्स. और ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मान लीजिए वो जो औरत है वो मर जाती है, दैट वुमन पासेस अवे. तो अब पता करना है कि ये इसका कत्ल कैसे हुआ, हाउ डिड शी डाई. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो डॉक्टर को इसने कहे थे, ये सारे स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगे. डॉक्टर कोर्ट आएगा और वो स्टेटमेंट्स बताएगा, and the court will consider those statements as valid evidence, and उसके बेसिस पे भी एक वर्डिक्ट हो सकता है. यह है डाइंग डिक्लेरेशन. ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं. एक इंसान था, ये एक्चुअली फैक्ट्स हैं, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर एक केस है, उसके ये फैक्ट्स हैं. ठीक है, इसमें हुआ क्या कि एक इंसान एक गांव में था, वो दूसरे गांव जा रहा था. तो उसकी बीवी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो. तो उसने कहा फला एक इंसान है मिस्टर एक्स, उसने मुझसे कर्जे लिए थे कुछ पैसे. एक इंसान है मिस्टर एक्स, मुझसे उसने कुछ कर्जा लिया था, तो मैं जा रहा हूं कि मैं वो पैसे वसूल करके आऊं. मैं वो कर्जा वो लौटाने का उसने वादा किया था आज, मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं वो पैसे उसके पास से वसूल कर लूं, उससे मैं ले लूं. अब वो चला गया लेने के लिए. अब वो लापता हो गया, अब किसी को नहीं मिला वो इंसान. 2 दिन के बाद उसकी लाश मिली एक रेलवे ट्रैक पे, ट्रेन की पटरियों के पास उसकी लाश मिली 2 दिन बाद. तो क्वेश्चन ये था कि जो ये चीज उसने अपने बीवी से कही थी कि किसी मैंने किसी को कर्जा दिया है और वो कर्जे को मैं वापस लेने के लिए जा रहा हूं, क्या ये स्टेटमेंट, इज दिस स्टेटमेंट रेलेवेंट, इज दिस स्टेटमेंट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा? द आंसर इज यस. राइट. व्हाई इज इट रेलेवेंट? अब आगे वाला कहे, मान लीजिए डिफेंडेंट कहता है कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं होना चाहिए, एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि वो मरने वाला है, वो तो घर से निकला ही अभी था. तो कोर्ट ने कहा उससे हमको क्या लेना था, भले उसको पता हो या ना पता हो, हमको इतना पता है कि वो जा तो इस मकसद से रहा था, इस एम से रहा था कि उसको पैसे वापस लेने. बिकॉज ही हैड गॉन इन टू टेक दैट मनी फ्रॉम हिम, दैट वाज हिज एम ऑफ लीविंग द हाउस. So there is a possibility that the person who owed this money, जो debtor है यहाँ पर, जो जिसने पैसे इससे कर्जे लिए थे, there's a possibility that that person might have also killed this person, right? उसको लगा होगा अच्छा तू मुझसे वापस लेने आ रहा है पैसे, और उसने उसका कत्ल कर दिया हो. That is a possibility. So which is why this is, Arisha, yes, the statement is related to the cause of death because we have to look at all the situation, all the circumstances, the context in which the death was caused. He had left to collect the debt and he died. So it is actually relevant. Okay? All right. अब ये आप समझ गए यहां पर. अब केस देखते हैं कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. The Supreme Court has said in Kushal Rao versus State of Bombay, first, that dying declaration is substantive evidence. Okay? It is substantive evidence. मतलब अगर dying declaration के, अगर आपके पास strong dying declaration है, तो सिर्फ उसी के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पे, that person who is being implicated, the accused, he can be convicted. कोई और corroboration की जरूरत नहीं. ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिक्लेरेशन स्ट्रांग है, तो सिर्फ उसी के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है.
recorded by anyone including a police officer. ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं इंक्लूडिंग अ पुलिस ऑफिसर. तो ये आप कंफ्यूज मत होना कन्फेशन से. कल लास्ट सेशन में हमने कन्फेशन की बात की थी और कन्फेशन हमने कहा था कि पुलिस रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो ये उस पर कंफ्यूज मत होना आप. डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है, डॉक्टर भी रिकॉर्ड कर सकता है, उसका कोई फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है. हाँ, ऑफ कोर्स अगर वो रिलेटिव थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है तो कोर्ट फिर उस कॉन्फ्लिक्ट पे भी ध्यान देगी. पति खुद रिकॉर्ड कर रहा है अपनी बीवी की, उसने ही अपनी बीवी को मारा, वो खुद रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोर्ट तो उस पर ज्यादा वैल्यू नहीं देगी. लेकिन जो प्रोबेटिव वैल्यू होता है, प्रोबेटिव वैल्यू आप अच्छे से इसको, इस टर्म को समझ लीजिएगा, और ये टर्म को आपको यूज करना है जब कभी भी एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन आए. यू हैव टू यूज द टर्म प्रोबेटिव वैल्यू. व्हाट इज प्रोबेटिव वैल्यू? प्रोबेटिव वैल्यू इज द वैल्यू, द वेट ऑफ एविडेंस. एक एविडेंस का कितना वेट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेटिव वैल्यू. ठीक है. सो द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन विल बी हाई if such dying declaration, the probative value of such dying declaration will be high if such dying declaration is recorded by the magistrate. Okay, I hope this is clear. अगर magistrate खुद record करता है dying declaration, तो जो evidence dying declaration की value है वो काफी high रहती है. The probative value of the evidence is very high. Okay, but record तो कोई भी कर सकता है. अब हर स्टेट में क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस बने हुए हैं, और क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस में देयर इज अ प्रोसीजर एज टू हाउ अ मैजिस्ट्रेट हैज टू रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन. ओके, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू नो सो फार. अच्छा, कुछ चीजें आपको और याद करनी है. नंबर वन, आई टोल्ड यू दैट dying declaration can be recorded by anyone including police officer, right? Just a second, if somebody is asking for the link. I hope you've all received the email with the link. I don't know why few people are unable to find the link, but okay. Anyway. So dying declaration number one is State of Orissa versus नायक ने oral dying declaration cannot be accepted कहा था. ऐसे ही नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं कहा था आतिफ. ये तो पूरा खुला खुला ये है, settled law है कि dying declaration अगर oral भी हो तो इनफैक्ट डाइंग डिक्लेरेशन जो है सेक्शन 32 क्लॉज 1, इट इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस. तो अगर ओरल कोई सुनता भी है डाइंग डिक्लेरेशन तब भी वो एडमिसिबल होगा बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस. तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये केस आप फिर से देख लीजिएगा इसमें क्या है. अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनीवन इंक्लूडिंग अ पुलिस ऑफिसर. वी ऑलरेडी मेंशन दैट, एंड इट इज ऑफ हायर प्रोबेटिव वैल्यू व्हेन मैजिस्ट्रेट और अ डॉक्टर रिकॉर्ड्स इट. ओके. Next is there should be reasonable proximity between the death and fact in issue. It should not be remote. मतलब कुछ तो proximity, थोड़ा सा reasonable proximity होना चाहिए. ऐसा नहीं कि dying declaration कोई और ही चीज बोल रहा है और यहाँ पर cause of death कुछ और ही चीज की वजह से हुई है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. There should be a reasonable proximity. Then the statement should relate to the cause of his death. This we have already discussed. Also, the statement is relevant both in homicide and suicide cases. Meaning, अगर वो suicide note में भी कोई चीज लिख देता है तो वो भी dying declaration होगा. Suicide note में अगर वो कोई चीज लिखता है तो वो भी dying declaration होगा. अगर किसी ने इतना ज्यादा किसी को दबाव डाला, कोई भी चीज में ब्लैकमेल कर रहा था, कुछ कर रहा था, और उस इंसान ने सुसाइड ही कर लिया, तो तब क्या होगा? सुसाइड नोट पे उसने अगर लिख के कर दिया, ठीक है, अगर उसने वैसे किया है तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड में आएगा, तो उसकी सजा उसको होगी. तो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस प्रूफ करने के लिए दिस डाइंग डिक्लेरेशन विल बी वैलिड. ओके. लास्ट इज देयर इज दिस केस क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला. काफी पुराना केस है, 1885 का. क्योंकि एविडेंस एक्ट उससे भी पुराना है तो ऑब्वियसली इतने पुराने केसेस तो होंगे ही. इस केस में ये कहा गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन नीड नॉट इवन बी वर्ड्स नहीं, ओरली भी जरूरत नहीं है. अगर हैंड जेस्चर से ही अगर किसी ने बता दिया तो वो भी काफी है. इस केस में हुआ क्या था, द डिसीज्ड जो मर रहा था उसका गला किसी ने काट दिया था और उसको हॉस्पिटल ले गए थे. तो वो फिर भी थोड़ा सा जिंदा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था.
तो उसने साइन करके अपने हाथों से साइन करके उसने डॉक्टर को बताया कि किसने मारा है, और वो मर गया। और ये जो उसने साइन करके डॉक्टर को बताया, ये भी रेलेवेंट करार दिया कोर्ट ने। कहा कि हाँ ठीक है, अगर समझ में आ रही है बात, तो ये इसको भी हम डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे। ओके, देन इट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, मीनिंग आधा अधूरा ना हो। ठीक है, आधा अधूरा ना हो, ये कंप्लीट हो और कंसिस्टेंट हो। एंड द लास्ट इज, इवन ए एफआईआर कैन बी डाइंग डिक्लेरेशन। एफआईआर कैसे? मान लीजिए कोई इंसान है, उसको धमकी दी जा रही थी। ही गोes to the police station, he gives a complaint, police registers a FIR कि ब्लैकमेल के लिए, कि कोई मुझे धमकी दे रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, कोई मुझे जान लेने की धमकी दे रहा है, और उसने किया, और उसी शाम को उसकी मौत हो गई। तो ये जो उसने कंप्लेंट दिया और एफआईआर रजिस्टर करवाया था, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मे बी इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ डाइंग डिक्लेरेशन। Okay, I hope this is clear. I hope the dying declaration concept is clear. If this is clear, we move on. आतिफ कह रहे हैं कि how can it be proved that dying declaration is always truth? देखिए, अगर कोर्ट को लगे कि कोई डाइंग डिक्लेरेशन ट्रूथ नहीं है, तो द कोर्ट इज फ्री टू नॉट कंसिडर इट टू बी एडमिसिबल एविडेंस। कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो ये कह सकती है कि देखिए, इसमें तो हमको कुछ लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो हम इसको नहीं, वो कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन लॉ कहता है, सेक्शन 32 और सुप्रीम कोर्ट के केसेस कहते हैं कि इसको आप सब्सटैंटिव एविडेंस से मानिए, क्योंकि कोई मरते हुए झूठ नहीं बोलता नॉर्मली, तो आप इसको थोड़ा ज्यादा वेट दीजिए। लेकिन वो एक डाइंग डिक्लेरेशन कुछ और ही बोल रहा है और सारे फैक्ट से बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिजेक्टेड। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट डाइंग डिक्लेरेशन की एक वैल्यू जरूर है। ठीक है आतिफ, आई होप दैट इज क्लियर। ऑलराइट, मूविंग ऑन। Ji, Sachin Pathak, you have raised your hand. Please tell me what your doubt is. Sachin, can you hear me? Okay, I don't even think he's in the session. ठीक है. Please raise your hand only if you have a doubt, or write it in the chat box. But I hope this topic is clear, right? We are moving on to the third topic, and that is misappropriation and breach of trust. Okay, misappropriation and breach of trust. बहुत छोटा सा टॉपिक है इंडियन पिनल कोड का, और बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि कई बार आप इनफैक्ट प्रीवियस के पेपर्स देखें, बीट जुडिशरी के या यूपीएससी लॉ ऑप्शन के, ज़्यादातर पूछा जाता है कि मिसअप्रोप्रिएशन क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, और इन दोनों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, ये पूछा जाता है। तो हम वो टॉपिक पे जाते हैं। प्रभावती इज आस्किंग मी, व्हेन देयर आर मोर देन one dying declarations, which one will be taken? That is up to the court. The court will have to see which dying declaration inspires more confidence. It's a point that you can write in your answer also. If there are multiple declarations, the declaration which inspires more confidence can be considered by the court, which the court thinks has more this thing. But however, also remember this: if there are multiple dying declarations and if they conflict with each other, then the value of the dying declaration in that case itself will go down. क्योंकि भले वो इंसान मरने वाला था, भले उसने कुछ बोला है, लेकिन अगर वो तीन चार चीजें अलग अलग बोला है और तीन चार चीजें सब एक एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में है, तो कोर्ट तो कहेगा यार ये तो शायद इसमें सच क्या है हमको पता ही नहीं। सो दे may simply reject dying declaration on the whole if there is a conflict. Otherwise, whichever inspires more confidence will be considered. ठीक है? I hope that's clear. All right. Okay. Now, misappropriation. Raksha, not the last one, no, not as a rule. We can't say the last one is the most important one. As a rule, we are not going to create. Whichever is this thing, maybe the last one was given to the husband. Maybe वो डर के उसने husband को ऐसा कुछ बोल दिया होगा. तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि last one ये था तो last one ही होगा. नहीं. The court will have to look at those circumstances and reach a conclusion. Okay. All right. Moving on with this third topic, misappropriation, breach of trust. इसमें दो sections आपको numbers याद करने हैं. एक है 403 और एक है 405. 403 of IPC talks about misappropriation and 405 talks about breach of trust. Okay. बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं. हम डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल.
Let's say you're walking on the road, and while you're walking on the road, you come across a costly pen. आप रोड पे चल रहे हैं और आपको रोड पे एक दिखा हुआ मिला कोई ऐसे बहुत कॉस्टली आपको पेन मिला। ठीक है, भले कॉस्टली हो या ना हो, लेकिन आपको मिला पेन। आप वो पेन लेते हैं। आसपास शायद कुछ दुकान हो, स्टेशनरी की भी दुकान हो। अब आप वो स्टेशनरी पे पूछ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मुझे एक नया पेन मिला है आपके सामने, तो शायद ये आपका होगा या कोई लेते जाते गिरा दिया होगा किसी ने यहाँ पर। या आप ये कर सकते हैं कि आपने बस पेन अपना ले लिया और आप चले गए। अगर आपने उस पेन को ले लिया और आपने कोई भी एफर्ट नहीं डाला टू फाइंड द राइट ओनर, यू विल बी गिल्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बस इतना है, यू विल बी गिल्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो देखते हैं और इसी एग्जाम्पल को वी विल कंसिडर हाउ इट फिट्स। फर्स्ट, व्हेन अ पर्सन कम्स इनटू अ पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहले होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। पेन क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ, बिल्कुल मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ही शुड कम इनटू पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय हिमसेल्फ एंड नॉट बाय एंट्रस्टमेंट। इसका मतलब क्या? ये पेन किसी, देखिए आपको वो पेन खुद ही से मिला है, किसी ने आपको दिया नहीं है। अगर मैं आपको दूं, आप ले रहे हैं और फिर आपने उससे अप्रोप्रिएट किया, वो होगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो हम आगे देखेंगे 405 में। लेकिन आपको किसी ने वो पेन दिया ही नहीं है, आपको खुद मिला है। बाय योरसेल्फ यू हैव फाउंड दैट पेन which was not in possession of anyone. You've just found that pen, you've used it. That should be there. Third is, he dishonestly misappropriates or converts to his own use. Dishonest intention के साथ उसने misappropriate कर लिया हो या अपने लिए उसने इस्तेमाल कर लिया हो। Fourth, without taking reasonable measures to find the owner. कौन ओनर है वो आपने पूछताछ नहीं की, रीजनेबल मेजर्स आपने नहीं लिए टू फाइंड द ओनर। अब यहां देखिए, रीजनेबल मेजर्स हर चीज के अलग होते हैं। आपको अगर रोड पे चलते हुए एक चेक मिले, बैंक का चेक मिले, और उस पे सिग्नेचर सब है, नाम उसने एम्प्टी छोड़ दिया, तो आप अपना नाम लिख के बैंक में आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं उस चेक को। क्या ये मिसअप्रोप्रिएशन होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप ये कहें कि देखिए मैं कहाँ ढूंढने निकलता ओनर कौन है, मुझे कहाँ पता चलता कोई कौन कौन ओनर है, इसलिए मैंने यूज कर लिया। तो अगर आप वहां नहीं मिलता आपको ओनर, बैंक का नाम तो लिखा हुआ था चेक पे, आप उस बैंक के ब्रांच पे जाके दे देते, ये कहते हुए कि देखिए आपके ब्रांच के कोई कस्टमर का चेक मुझे मिला है। कोई बड़ी बात तो नहीं थी आपको ओनर ढूंढने के लिए। और अगर ओनर आपको ना मिले तो आप अपना खुद का नाम लिख के आप तो इनकैश नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या है, रीजनेबल मेजर्स में स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि चेक है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, बैंक का नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको पेन मिल जाए और ऐसे जगह मिल जाए जंगल में जहां पर आसपास कोई रहता ही नहीं है, तो कहाँ ढूंढने निकलेंगे आप? तो शायद वहां पर आप यूज भी कर लें, तो आप आसपास देखें कोई है नहीं, थोड़ा आपने देखा फिर बोला कि यार यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं, पता नहीं कब से यहाँ पर पेन पड़ा हुआ है, मैं कहाँ ढूंढने निकलूंगा, और आपने पेन को ले लिया। इन दैट केस इट विल बी फाइन। क्यों? यहाँ पर रीजनेबल मेजर्स का स्टैंडर्ड काफी कम है, क्योंकि आप किस कैसे ढूंढ पाएंगे। तो रीजनेबल मेजर्स जो है वो फैक्ट बेसिस पे होगा। ये सेक्शन 403 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज टू व्हाट आर रीजनेबल मेजर्स। इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, सो वी विल हैव टू लुक एट द केस at hand and then decide. Number 5 is, without waiting for a reasonable time for the owner to find it. आप थोड़ा रीजनेबल टाइम आपको वेट करना पड़ेगा ताकि ओनर उस चीज को ढूंढ पाए। आप अगर रीजनेबल टाइम के लिए नहीं वेट करते हैं तो वो मिसअप्रोप्रिएशन होगा। अगेन रीजनेबल टाइम एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है कि व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, which means that it will have to be decided on a case by case basis as to what is a reasonable time. Okay, I hope all of this is clear. All right, ये essentials है misappropriation of property की। अच्छा, there is one case here, राघव जी पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यही केस मिसअप्रोप्रिएशन में भी लिख सकते हैं, आप यही केस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी लिख सकते हैं। तो आप ये एक केस याद कर लें, काफी होगा आपके लिए। फिर भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक अलग केस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राघव जी पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट सेज
that the accused should not have any authority over the property. Hence, a partner in a firm cannot misappropriate as he is a joint owner. तो मान लीजिए मैं पार्टनरशिप फर्म मैंने बनाई है, मेरे साथ 3 और पार्टनर्स हैं। ऑफिस में कोई चीज रखी हुई है, कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, वो ऑफिस के लिए था। मैंने उस कंप्यूटर को ले लिया एंड आई वेंट टू माय हाउस एंड आई स्टार्ट यूजिंग दैट फॉर माय पर्सनल यूज, या मैंने उस कंप्यूटर को बेच दिया और पैसे मैंने ले लिए। विल आई बी गिल्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन? द आंसर इज नो, आई विल नॉट बी गिल्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। व्हाई? बिकॉज I, as a partner in a firm, I am a co-owner of that property. And because I have an authority over that property, I cannot misappropriate property which already belongs to me. मैं अपने खुद के प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए दिस विल नॉट बी मिसअप्रोप्रिएशन। हाँ, ये हो सकता है कि दूसरे पार्टनर मुझे सू करें कि यार तुमने विदाउट कंसेंट यू हैव रॉन्गफुली कॉज्ड हार्म, ये तो सबका ओनरशिप है, तुम्हारा अकेला ओनरशिप नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो सब अलग बात है। क्रिमिनल लॉ में 403 के अंदर ये मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। So it is important for the accused not to have any authority over that property. Now I'm moving on to section 405. What does 405 say? 405 says that a person will be guilty when, अब यहां पर देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल यहां पर बदल रहा हूं। ओके, मैं आपको मान लीजिए आई एम लेट्स से गोइंग टू सम प्लेस, मैं कहीं और जा रहा हूं अपने शहर छोड़ के, कुछ 1 हफ्ते के लिए मुझे कहीं जाना है दूसरे शहर। अब मेरे घर पे कोई सोने की चीज रखी हुई है, मे बी अ रिंग और अ नेकलेस। देयर इज अ गोल्ड नेकलेस और अ गोल्ड रिंग दैट आई हैव। अब मैं इसको घर पे नहीं रखना चाहता क्योंकि मुझे डर है कि यार क्या पता मतलब कोई चोरी वगैरह हो जाए, घर पे कोई आ जाए, तो मैं बहुत रेस्टलेस रहूंगा, तो मुझे घर पे नहीं रखना है। तो मैंने अपने पड़ोसी को दे दी, ये देखो दिस इज अ गोल्ड नेकलेस, प्लीज कीप इट विथ यू, आई विल कम बैक एंड कलेक्ट इट फ्रॉम यू, सो प्लीज कीप इट विथ यू। आई हैव गिवन इट टू हिम। I come back and I find out that he has sold that gold necklace and he has used that money. This will amount to breach of trust. This will amount to breach of trust. Let us now look at the essentials. First, it says a person will be guilty when, number one, he is entrusted with a property. देखिए, misappropriation में nobody was giving that property to you. Nobody was entrusting that property to you. You got the possession on your own. Nobody was giving that possession to you. Whereas in breach of trust, somebody is giving that possession to you. They're entrusting that property to you. So entrustment is necessary. That's number one. Second is, it can be movable or immovable. क्योंकि जो सेक्शन है वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहा है। जैसे सेक्शन 378 थेफ्ट है, सेक्शन 403 मिसअप्रोप्रिएशन है। इन सेक्शंस में द सेक्शन इज यूजिंग द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम बोल रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर भले वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इमूवेबल भी हो सकती है, मतलब मैंने अगर अपने घर की ही चाबी उसको दे दी, ठीक है, और घर के कागजात भी मैंने उसको दे दिए कि यार ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है घर के, मैं घर के अंदर नहीं रखना चाहता, और चाबी भी ये है, मैं तुम्हारे हवाले घर को करके जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। जब तक आप वापस गए उसने वो डॉक्यूमेंट्स बताया और किसी को बेच भी दिया घर, इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई घर, फिर भी ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है। सो नंबर वन, देयर शुड बी एंट्रस्टमेंट, इट कैन बी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड, he should dishonestly misappropriate or convert to his own use. Third, it should be in violation of any law or legal contract. ये कोई लॉ या लीगल कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन यहां पर होना जरूरी है। हाँ, ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न हो, तो ओरली आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी हो सकता है। इसमें यहां पर केस देखिए, जसवंत राय अखानी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये इंपॉर्टेंट केस है, जसवंत राय अखानी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अगर आपको ये दोनों केसेस याद नहीं होते हैं तो पहला जो केस मैंने कहा था राघव जी पटेल, वो आप याद रख लीजिएगा, वो काफी है। वही चीज आप यहां पर भी लिख सकते हैं क्योंकि उस केस में 405 के बारे में भी बात की गई थी, तो आप वही केस यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ज्यादा केसेस याद नहीं होते तो। वरना अगर आप जसवंत राय खाने लिखेंगे तो ऑन पॉइंट केस है, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। जसवंत राय खाने वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, व्हाट डज इट से? इट सेज एंट्रस्टमेंट इज एसेंशियल
इंटरेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, इट इज एसेंशियल, एंड इट नीड नॉट बी इन अ लीगल सेंस, मीनिंग कि ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बना लिया हो और मैं बेलर हूं, आप बेली हैं, और मैंने आपको चीज दी है एज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और फिर दोनों साइन कर रहे हैं। नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। टेक्निकल सेंस में मैंने आपको कोई जिम्मेदार बना दिया उस चीज का, वो भी काफी। तो मैं जैसे नेकलेस अपने पड़ोसी को देके जा रहा हूँ, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस टेक्निकली मैंने उसको बोल दिया कि यार तुम जिम्मेदार हो, और उसने जिम्मेदारी ली है, तो वो काफी है। ठीक है, दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस में आप ऑलरेडी, आपको पता ही होगा डिफरेंसेस, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर वन, मिसअप्रोप्रिएशन में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी 403। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में या मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल भी हो सकती है। नंबर टू, misappropriation में the property is not in possession of anyone. You are receiving the property. You are getting that property in your possession, but it is not when it is not given to you. Breach of trust में the property is actually given to you. It is given to your possession. It is entrusted to you. Misappropriation में when not taken reasonable measures to find the owner. So अगर whoever finds this property, if he does not take reasonable measures to find the owner, then of course it will amount to misappropriation. Breach of trust when you violate a law or legal contract or any arrangement of entrustment, that will amount to breach of contract. These are the basic differences between the two sections. Okay, I hope this is clear. This is really important, right? This is the most important of all the topics we've discussed so far. Okay, I hope this is clear. Okay, give me a yes if this is clear. We'll move on to the next one. Okay. Raksha, I didn't get you. Can you share what? Okay, I'm moving on. Fourth concept is anticipatory bail. It's a very small concept, but there is a reason why I'm telling you I'm going to teach this anticipatory bail. I don't know if anybody knows this reason. I'll just give it out here. Okay. Our classes generally will be more interactive, guys, than this. You know, there'll be a lot of back and forth asking of questions and stuff like that. यहाँ पर it's more or less a one way monologue हो रहा है यहाँ पर. अच्छा, एंटिसिपेटरी बेल क्यों इंपॉर्टेंट है? अब खासकर इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल 2020 में टुवर्ड्स द एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट. 5 जज बेंच का एक जजमेंट आया था कॉल्ड सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, और ये एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर आया था. ठीक है, क्योंकि ये 5 जज बेंच है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, विच इज व्हाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट. ओके, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल होता क्या है, व्हाट आर द गाइडलाइंस, देन वी विल कम टू द केस. ओके, ये आप केस तो याद रख लीजिएगा, सुशीला अग्रवाल वर्सेस दिल्ली. आई विल कम टू दैट. व्हाट इज एंटिसिपेटरी बेल? देखिए, एंटिसिपेटरी बेल इज अ बेल व्हेन यू a bail that you take in anticipation of arrest. It's as simple as that. A bail that you take, a bail that you seek in anticipation of arrest. मान लीजिए आपको लगता है कि आपके इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कोई ऐसी घटना हुई है और आपको लगता है कि यार मेरे ऊपर उंगलियां उठ सकती हैं, ये कह सकते हैं कि मैंने कुछ किया है. मान लो आपके पड़ोसी का कत्ल हो गया, योर नेबर हैज बीन किल्ड. अब आपको लगता है कि यार मेरी तो बनती नहीं थी उसके साथ, तो शायद पुलिस मुझे अरेस्ट करे, मुझसे पूछ सकती है. ठीक है, आपको डर है. अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, ना उन्होंने कंप्लेंट ली है, ना उन्होंने एफआईआर किया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं किया. लेकिन आपको डर अभी से लगने लग गया कि मेरा तो कसूर नहीं है, लेकिन क्या पता मुझे अरेस्ट कर ले पुलिस पूछताछ के लिए, फिर मुझे जेल में रहना पड़ेगा पता नहीं कब तक. अगर बाद में मुझे अक्यूज बना भी दिया तो फिर वो अलग सरदर्दी कि मुझे अक्यूज बनना पड़ेगा, फिर मैं अपने आप को कोर्ट के सामने निर्दोष साबित करूं, फिर जाके मैं छूटूंगा. तो ये सब के लिए, ताकि आप पहले से ही आपके पास कोई प्रोटेक्शन हो, आप पहले ही बेल मांग सकते हैं कोर्ट जाके. कौन से कोर्ट? या तो आप हाई कोर्ट जाएं या सेशन कोर्ट. हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट,
हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस, ये दो कोर्ट्स में कहीं पे भी आप जाएं और आप पिटिशन फाइल करें, किसमें? सेक्शन 438 में. Under Section 438, you can file a petition either in the High Court or the Court of Session, the Sessions Court, requesting for a bail to be granted even before your arrest, and that bail is called anticipatory bail. Okay, I hope that is clear. Now let's look at the section. What does the section say? It says 438 of CRPC states that when there is a reason to believe that a person may be arrested, number one, you'll have to have a reason to believe, and that reason to believe should be slightly reasonable also. ऐसा नहीं कि मुझे कल रात को सपना आया था कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है तो मैं आ गया कोर्ट में बेल लेने के लिए कि देखिए पहले ही दे दीजिए कि सपना कहीं सच ना हो जाए. नहीं नहीं, ऐसे नहीं. You will have to have a reason to believe, a proper reason to believe that you may be arrested on accusation of a non-bailable offense. Bailable offense में नहीं, क्योंकि sorry guys, really sorry for this. My computer had crashed, but I hope you're all there with me. I'm just trying to open the PPT. This happens once a month, and वो अभी होना था इसको. Right. Sorry. I hope you're all here. Okay. Now, somebody is asking me. Somebody has asked me in the this thing in the
डाउट्स, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस? देखिए, सेक्शन 436 में बेलेबल ऑफेंसेस के लिए बेल मिलती है, 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। सीआरपीसी में एक फर्स्ट शेड्यूल है, और वो फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन से नहीं है। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो एज अ राइट आपका हक है कि आपको बेल मिल जाएगा, को कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती। तो वो छोटे से ऑफेंसेस होंगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस जैसे मर्डर वगैरह जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, उसमें कोर्ट चाहे तो बेल दे सकती है, वरना वो बेल इनकार भी कर सकती है। दोज आर कॉल्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब आपके पास राइट नहीं, यू डोंट हैव अ राइट टू सीक अ बेल। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। नाउ एंटिसिपेटरी बेल इज ओनली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। व्हाई? क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में तो आपका राइट है वहां पर। So as a right, you obviously have a right, to get the bail in bailable offences. Okay. Now there are some guidelines. What are the guidelines? This is an important case here by the Supreme Court. Gurbaksh Singh Sibhia versus State of Punjab. Okay, Gurbaksh Singh Sibhia versus State of Punjab. Please ये आप केस को अच्छे से याद रख लें. बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सीआरपीसी ऑन द होल. ओके, और जो मैं सुशीला अग्रवाल वर्सेस दिल्ली की केस की बात कर रहा था, उस केस में ज्यादा नया कुछ उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने गुरबख्श सिंह सिबिया को ही रीअफर्म किया. सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. What did the Supreme Court say in this? Several guidelines have been laid with regard to anticipatory bail. Let's look at all these. First, it said the court has wide discretion to give anticipatory bail, even in offences punishable with life imprisonment or death. मतलब कोर्ट के पास, सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के पास बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो एंटिसिपेटरी बेल दे दे या वो मना कर दे. और जहां पर कोई ऐसा ऑफेंस हो जिस ऑफेंस के लिए जो सजा है वो डेथ पेनल्टी भी क्यों ना हो, जैसे मर्डर है इसके लिए डेथ पेनल्टी है, या प्रेपरेशन और वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया जो है उसमें भी डेथ पेनल्टी है, तो डेथ पेनल्टी भी क्यों ना हो, वहां पर भी अगर कोर्ट चाहे तो एंटिसिपेटरी बेल दे सकती है. ठीक है, बाई डिस्क्रिशन है. ओके. सेकेंड, द मैटर विल हैव टू बी एग्जामिन्ड ऑब्जेक्टिवली. तो आप ऑब्जेक्टिवली इस मैटर को देखें, सब्जेक्टिवली नहीं. आप देखें कि जो ये इंसान है, यू नो ये इंसान, मतलब क्या इसने सच में वो एक्ट आपको क्या लग रहा है कि इसने वो एक्ट किया है? अच्छा, अगर किया भी हो तो क्या आपको लग रहा है कि ये भाग जाएगा, विल ही एब्सकॉन्ड, ये नहीं मिलने वाला फिर वापस? तो ये सब आप देखें, and then you decide whether you want to give anticipatory bail or not. Obviously, if there's a risk of this person absconding, then you shouldn't give an anticipatory bail. उसको मत दीजिए भी. अच्छा, while the court has the authority, it should avoid ex parte orders. मतलब आप एक तरफा सुन के आप orders मत दें. आप जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, मतलब जो पुलिस की तरफ, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ जो वकील होता है, गवर्नमेंट का वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, also ask that public prosecutor give him an opportunity of reasonable hearing, fair hearing. See what he has to say. Maybe prosecutor will come and say, public prosecutor will come and say a few things which might matter in giving or not giving the bail. तो ex parte orders वैसे कोर्ट चाहे तो पास कर सकती है, लेकिन आइडियली जनरली पास नहीं करना चाहिए. द कोर्ट शुड अवॉइड इट. ठीक है. एफआईआर, एफआईआर जो है रहना जरूरी नहीं है. इट्स नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट दैट देयर शुड बी एन एफआईआर. मीनिंग, अगर कोई एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाता है, ठीक है, कोर्ट के पास, कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि यार तुमको क्यों लग रहा है कि तुमको अरेस्ट किया जाएगा. वो कहेगा देखिए फलाना फलाना ये क्राइम है, और शायद मुझे लग रहा है कि मुझे ही पुलिस अरेस्ट कर ले इस क्राइम के लिए. तो फिर अब कोर्ट ये कहे कि एफआईआर तो हुआ नहीं है, तो एफआईआर तो होने दो, उसके बाद हम आपको बेल देंगे. नहीं, ये कोई जरूरत नहीं कि एफआईआर, इवन बिफोर एन एफआईआर इज रजिस्टर्ड बाय द पुलिस, एंटिसिपेटरी बेल कैन बी गिवन. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जनरली कहा है कि ब्लैंकेट ऑर्डर्स शुड नॉट बी पास्ड. मीनिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ये इंसान को कोई भी जुर्म में अरेस्ट हो जाए तब उसके पास बेल है. नहीं, आप स्पेसिफाई करें कि इन व्हाट एक्यूजेशंस, इन व्हाट ऑफेंसेस
Ayaskanta Ghosh is saying, what is blanket order? I'm explaining the same thing, Ayaskanta, okay? You will have to specify in exactly what accusation this anticipatory bail is being given. For example, if a person comes before the court and says, there's a murder that has happened in my neighborhood and I might be arrested for that. Okay. The court gives an anticipatory bail. Let's say tomorrow he is arrested for embezzlement of his company's property. He is working for a company and he has misappropriated certain funds in the company. So he's being arrested for that. Can he say, look, I already have an anticipatory bail, so please don't arrest me? No, he cannot. Why? Because that anticipatory bail is in relation to the murder that has happened in his neighborhood. It is not in relation to embezzlement that has happened in his office. So a blanket order saying he will not be arrested, he will have a bail for anything, that should not be given. Okay, it should be specific. I hope that's, yeah, I hope you've understood as that. Okay, then once the arrest has happened, then in that case, there will not be any anticipatory bail after arrest. Meaning anticipatory bail is before the arrest itself, it is not after the arrest. So it will not be that, arrest हो गया फिर वो जा रहा है anticipatory bail नहीं, तब तो आप बाकायदा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का जो बेल होता है सेक्शन 437 आप वो अप्लाई कीजिए. Please do not apply for anticipatory bail because now there is no more anticipation, you have actually been arrested, right? So that is another guideline, right? Another guideline is bail will be effective till conclusion of the trial. So the bail is going to be effective till conclusion of the trial. ऐसा नहीं कि FIR रजिस्टर होते ही बेल कैंसिल हो गया, नहीं. अरेस्ट होते ही बेल कैंसिल हो गया, नहीं. अरेस्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि बेल है. और जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता वो बेल विल बी इफेक्टिव unless it is cancelled earlier. If the court cancels it earlier, then that bail will be cancelled. Fine. However, the Supreme Court here said the anticipatory bail should be given in exceptional cases, meaning the rule of bail not jail, it does not apply to section 437. ये सेक्शन 437 पे अप्लाई नहीं होगा. ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा. मतलब आप हर एक केस में जनरली एंटिसिपेटरी बेल्स ना दें, कोई एक्सेप्शनल केसेस में ही आप एंटिसिपेटरी बेल दें. एज अ रूल डू नॉट गिव एंटिसिपेटरी बेल्स is what the court said. Then there is this judgment, Sushila Agarwal versus Delhi. What does this judgment say? This judgment, it's a 5 judgment like I told you already. The judgment says that there is, number one, no time limit to be fixed on anticipatory bails, meaning that the bail will be valid till the conclusion of the trial. Okay, the bail will be valid till the conclusion of the trial. And it does not lapse when the accused is summoned or charges are fixed. Simply because आप accused को बुला रहे हैं तो automatically anticipatory lapse हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. Now the court may impose conditions in their discretion. However, it is not compulsory. So अगर कोई conditions अगर court को add करने हो तो yes, the court can add conditions, but it is not compulsory. It is up to them. It is discretionary. What can be the conditions? The conditions can be that, look, you should not leave, let's say, this particular state. आप ये state छोड़ के आप बाहर नहीं जाओ. ये condition court लगा सकता है. ऐसे कोई भी conditions court लगा सकता है, लेकिन compulsory नहीं. It's up to the court. It's up to the court if they want to do it or not. So Gurbakhsh Singh Sibia versus State of Punjab, Sushila Agarwal versus MCT of Delhi. This is really important. अगर आप कोई ऐसे जुडिशरी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जो इस साल हो या अगले साल हो, तो मुझे लगता है कि एंटिसिपेटरी पे एक क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जजमेंट आया, तो उसके बेसिस पे दिस टॉपिक इज रेलेवेंट. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. Now, Arnesh Kumar, Atif is asking me Arnesh Kumar. Arnesh Kumar case had laid down certain guidelines with regard to arrest. ठीक है, वो अरेस्ट के गाइडलाइंस वहां पर अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हुए थे कि सेक्शन 41A में एक नोटिस देनी चाहिए अरेस्ट से पहले, और अगर आप जब अरेस्ट कर रहे हैं तो ये आप इंक्वायरी करें कि इसको एंटिसिपेटरी बेल मिली या नहीं मिली है. अगर मिली है तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते. और अरेस्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस जो DK बासु केस में भी आए थे वो भी यहाँ पर रिपीट थोड़े से हुए थे अरनेश कुमार में.
ठीक है, ये थोड़ा रीसेंट केस है, थोड़ा मतलब 2012 का मुझे लगता है या 11 का ये केस है अनिश कुमार। ठीक है, ये हम केस डिटेल में जब करेंगे जब हम अरेस्ट की बात करें, सेक्शन 41 की हम जब बात करेंगे, अरेस्ट विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल केसेस, तब विल टॉक अबाउट अनिश कुमार, तब विल टॉक अबाउट दिनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ये केस है, तब वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डीके बासु। ठीक है, so for now I hope this is clear to all of you. Okay, anticipatory bail, I hope this is clear, right? Now, great, amazing. Because we are out of time now, and I told you it will be like 75-minute sessions, I'm not going with the fifth concept. It transfers property act ka ek fifth concept tha that we will do it in the next session, hopefully. But that is all for now in this session. Please don't forget to join this course. There are seats available now, last few seats. Do join this 100-day correspondence course. If you have any doubts with regard to this course, you may ask now. All right, you can unmute yourselves and ask.